Hi, good morning, my dear friends and student. Today, I welcome to all of you to join this class again. We are going to read about class 11th history, second chapter, writing and city life. This chapter is very important and interesting because in this chapter we will read about the earliest culture of the world, that is Mesopotamian culture. We have read about Indus Valley civilization that was flourished in India during 3500 BC to 2700 BC and later also. Both civilizations were contemporary. But according to historian, Mesopotamian culture was earliest from Indus Valley civilization. In the Mesopotamian culture, there was some specific quality that they have writing skills. They started first time in writing skill according to historian. They have first urban culture also. They interconnect with the foreign cultures, and it was explained by the various seals. According to archaeological findings, we can say that the Mesopotamian culture was first culture where we have seen the city life. So that's why this chapter name is City Life, and in this chapter we will discuss about that. The expansion of the languages and the culture of Mesopotamia in the other areas. We will also read about the city of Sumeria, Akkad, Uruk, Ur and others. हम देखेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है. शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है. फरात, इट मीन्स यूफ्रेटस, और टिग्रिस नदियों के बीच यह प्रदेश आज के इराक में स्थित था. मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था. इट मीन्स सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, the land between Euphrates and Tigris river. That is now part of the Republic Iraq. Mesopotamian civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich tradition, literature, and its mathematics and astronomy. That is the main point. You have to think about that. The culture who developed that mathematics, writings. Mesopotamian writing system and the literature spread up to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC. So that the kingdom of that entire region were writing with one another and to
Pharaoh of Egypt. In the language and script of Mesopotamian, here we shall explore the connection between city life and writing, and then look at the some outcome of the sustained tradition of writings. एक लंबा इतिहास और उनका किस तरीके से बाहर के देशों के साथ संपर्क मेसोपोटामिया ने अपनी लेखन कला के कारण ही मिस्र के फिराओं के साथ लिखित दस्तावेजों के आधार पर संबंध स्थापित किए। ये एक यूनिक बात थी, ये अपने समय की एक विशेषता थी, उस कल्चर की विकास की स्थिति थी। किस तरीके से उनकी राइटिंग स्किल्स फैली, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से लेकर सीरिया, टर्की और मिस्र तक के बड़े इलाकों में इनका विकास हुआ, और फिर धीरे धीरे मेसोपोटामियन सभ्यता का विकास मिडिल ईस्ट एशिया से लेकर ईस्ट एशिया के देशों में फैल गया। इन द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्ड or in the beginning of the recorded history, the land, mainly the urbanized south, see discussion below, was called Sumer and Akkad. After 2000 BC, when Babylon became an important city, the term Babylonia used for the southern region from about 1100 BC. When the Assyrian established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. The first known language of the land was Sumerian. It was gradually replaced by Akkadian around 2400 BC. My every and each statement, listen very carefully. I am telling you the languages. I am telling you that gradually they aware of the language. First they aware the language of Sumerian, and then after Akkadian during 2400 BC, when Akkadian speakers arrived, they know about that Akkadian. This language flourished till about Alexander's time, 336 to 323. I hope do you know about Alexander, the great Alexander. उसके बारे में विश्व विजेता का तमगा उसको दिया जाता है। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान, इसने भारत के क्षेत्रों पे भी आक्रमण करने जीता, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पे। हाइडेस्पीज बार के बारे में आपने क्लास 7, 8, 9, स्पेशली 6, 7, 8 की क्लास में पढ़ा होगा। अलेक्जेंडर्स पीरियड के समय तक ये लैंग्वेज चल रही थी, विथ सम रीजनल चेंजेस आकरिंग, थोड़े बहुत बदलाव आ चुके थे। From 1400 BC, the Aramaic also trickled in this language, similar to Hebrew, became widely spoken after 1000 BC. It is still spoken part of Iraq. This is the introduction of this chapter. In this chapter, we are clearly aware that what we are going to read. We are going to read about their city life. We are going to read about their literature. We are going to read about their writing and legacy.
their calendar, and their economy also, their trade. My dear student, before this, we have to know about that. The Mesopotamian history. First, we have to know what is the meaning of Mesopotamia. मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग दो नदियों के बीच स्थित स्थान. अगेन आई रिपीट, द नेम ऑफ मेसोपोटामिया is derived from the Greek word mesos means middle and potamos meaning river. The two rivers, Euphrates and Tigris. The middle place, that is Mesopotamia. No doubt to explain that was Doaba. That was a very fertile land. And Doaba and this fertile land is called the cradle of the culture and civilization. सभ्यताओं का पालना कही जाती है. नदियों की घाटियां सारी सभ्यताओं के उत्पत्ति में महत्वपूर्ण रोल निभाए. आप विश्व के किसी भी सिविलाइजेशन को देखें, आपको सभी जगहों पे एक बड़ी नगरीकृत सभ्यता का विकास नदियों की घाटियों में ही दिखाई देगा. चीन में वांगहो नदी घाटी की सभ्यता, आई मीन टू से सिविलाइजेशन ऑफ वांगो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नाइल रिवर सिविलाइजेशन. It means everywhere, if you will consider, that you will find that river play very important role in the flourish of civilization and culture, because it help various way. It provides the drinking facility, it provides the fertile land, it provides the navigation system, it provides the transportation and various occupation based on the river. Especially the fertile land, नमयुक्त जमीन जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो उन्हें प्राप्त होता था और यहां से उसका विकास शुरू हुआ. लेकिन मेसोपोटामियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ तथ्यों को समझना पड़ेगा जो निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको आश्चर्यचकित करने वाले होंगे. जैसे जब इतिहासकारों ने, जब पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने एंड हिस्टोरियंस ने 1840 के डिकेड्स में मेसोपोटामिया में उत्खनन शुरू किया, एक्सकवेशन का कार्य शुरू कराया, तो वहां दो बड़े शहर उरुक और मारी, that was city. We will discuss about that city in this chapter later. But that was the city excavated first time in 1840 decades. और इसके आधार पे उत्खनन का कार्य कई दिनों तक चला, कई वर्षों तक चला और इन खुदाइयों का, इन एक्सकवेशन का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली जो निश्चित रूप से आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी. नॉट ओनली कैन वी स्टडी 100 of Mesopotamian buildings, status, ornaments, grave, tools and seals as sources. There are thousands of written documents, tables, written documents. I again mention this sentence. In the excavation, archaeologists found the huge amount of the tables. That is the written documents. Mesopotamian was important for the European because of the reference
in the Old Testament. That first part of the reference to it in the Old Testament. The first part, the instance, the book of Genesis of the Old Testament refer to Shinar, meaning Sumer, as a land of bricks built city. Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. And when archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. Meaning, कि the Mesopotamia was attracted European historians, Europeans, religious person, because कि जो चीजें वहां पे एक्सकेवेशन मिल रही थी उसकी समानता वो ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णन नगरों से कर रहे थे. यूरोपियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में उनके उल्लेख कई संदर्भों में किया गया था. उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ओल्ड जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि. इट मीन्स कि यूरोप के लोग उसे ओल्ड टेस्टामेंट की वो पुरानी सिटी समझ रहे थे जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट में एक्सप्लेन की गई थी, वर्णित की गई थी. इसलिए लोगों का आकर्षण, लोगों की उत्सुकता यहां पे और अधिक मात्रा में एक्सकवेशन कराने के लिए हुई. फंडिंग हुई, पैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इंटर रिलेट किया जा सके ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरी से और इस सिटी से. यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया की तरह अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे. और जब इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई, आर्कियोलॉजिकल खोज शुरू किए गए, तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः वर्ड टू वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट सही है, सत्य है, ये सिद्ध करने का एक नया प्रयास शुरू कर दिया गया. 19वीं सेंचुरी तक आते आते मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई. 1873 में एक ब्रिटिश समाज पत्र, एक पेपर था ब्रिटिश, उसने इन चीजों के बारे में उल्लेख किया. जब वो पेपर ये बात कहता है कि वहां पे लोगों का क्या जुड़ाव रहा होगा, प्रारंभ में खोजे गए परिणामों पे कितना खर्च उठाया गया होगा. मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली, जो टेबल्स मिले, टेबलेट मिले, उस पे बाइबल के उल्लिखित एक स्टोरी की कहानी का वर्णन है. एक और सिमिलरिटी जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी. From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for the exploring the ancient past of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper funded an expeditions of the British Museum to reach for a table narrating the story of the flood mentioned in the table. In the 1960, it was understood that stories of the Old Testament were not literally true
but may have been way of expressing the memories about important changing in the history. Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. What is more attention was directed to different questions, including reconstructing the lives of ordinary people, establishing the literal truth of the Bible narratives receded into the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these later studies. बाद में जो चीजें हुई, बदलाव हुआ, उन चीजों पे पूरा जब ध्यान दिया गया तो धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकी अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। उसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया। लोग यहां तक कि आम लोगों के जनजीवन की परिकल्पना करने लगे, देखने लगे कि उनका जीवन कैसा होगा, कैसा रहा होगा, और फिर उनके आधार पे बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का प्रयास। लेकिन ये क्लियरली दोनों से टैली नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बना रहा। इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों के विस्तार से बात करेंगे। आइए उस स्टोरी पे भी बात कर लेते हैं जो मेसोपोटामिया के सील्स पे मिली, जिसका बाइबल से संबंध था। बट हियर आई वांट टू inform you that this story is famous in probably all the religions. Christian, I mean to say that Bible, I mean to say that Satpat Brahman, Brahmanical text, Quran, Muslim text, everywhere this story given little bit change. थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक कहानी दी गई जो टेबलेट पे, मेसोपोटामियन टेबलेट पे बनी हुई थी। According to the Bible, the flood was meant to destroy all life on earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. Noah built a huge boat, an ark. He took a pair each of all known species of animals and birds and board the ark which survived the flood. There was a strangely similar story in the Mesopotamian tradition, where the principal chapter was called the Eusedra or Utan Pistim। कह रहा है कि एक कहानी का वर्णन है बाइबल में। जब बाढ़ आती है, जलप्लावन, जिसमें समस्त जीवन के नष्ट होने की बात परमेश्वर करना चाहते हैं, तो जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने नोहा नाम के एक मनुष्य का चयन किया। नोहा से इसके बारे में बात की और नोहा से कहा कि तुम आज से एक बड़ी जहाज बनाओ और तुम उस जहाज में पृथ्वी पर के सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को उस जहाज में सुरक्षित रखो। नोहा ने ऐसा ही किया। नोहा ने एक बहुत बड़ी जहाज बनाई, एक विशाल नाव। उसमें सभी जीव जंतुओं को एक एक करके एक एक जोड़ा रखा, और जब बाढ़ आई, जलप्लावन हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे ये पेयर, ये कपल, ये जोड़े सुरक्षित रह गए, बच गए। ये कहानी सभी जगहों पे। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी है। उनके ट्रेडिशनल लिटरेचर में भी इसके वर्णन है।
इस कहानी में मुख्य पात्र जीव शूद्र, बाइबल में नोहा, मेसोपोटामिया में जीव शूद्र, कुरान में आदम, मनुस्मृति और सतपथ ब्राह्मण में मनु और शत्रुपा, तमाम सारे नाम मिलेंगे आपको। इस सिमिलर स्टोरी किया तो जो लिटरेचर मेसोपोटामिया में है उसमें उसका नाम जीव शूद्र या उतान पिष्टिम मिलता है। और यहां से आपको एक नए चरण में मेसोपोटामिया के विकास को दिखाता है। अब यहां से हम अब ध्यान देंगे, पूरी डिटेल करेंगे इस चैप्टर की। हम इस चैप्टर को यहां से पढ़ेंगे किस तरीके से जोग्राफिकल एक्सपेंशन, उनका विस्तार कितने बड़े क्षेत्र पे हुआ, इन सारी चीजों पे हम इन चैप्टर पर बात करेंगे। लेकिन क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि मेसोपोटामिया जैसा सभ्यता ने सबसे पहले विश्व को एक नगरीकृत समाज दिया, लेखन कला का विकास किया और उसके लेखन कला से दुनिया के कई सारे देश आकर्षित हुए। मिस्र जैसा समृद्ध राष्ट्र और मिस्र के फेराओ भी उससे रिटन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे निगोशिएशन करते थे, बातचीत करते थे। टर्की, सीरिया के बाद भारत में भी मेसोपोटामियन सील मिली। लोथल में मेसोपोटामियन सील के एविडेंस हमारे पास हैं जो बेलनाकार हैं। और शायद इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये कॉलोनी थी मेसोपोटामिया की, क्योंकि मेसोपोटामिया में पहली बार अर्बनाइजेशन का विकास हुआ था और मेसोपोटामिया के बाद इंडस डेवलप हुई। इसलिए उन्होंने इस मत को दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास मेसोपोटामिया से। फिलहाल दैट इज द वेरी डिस्प्यूटेड मैटर। दैट टाइम हिस्टोरियन don't believe that. But whatever, here in this chapter we will discuss about Mesopotamian story, writing and city life. First topic, your book, that is the, I think, geographical specialty of the Mesopotamia. We will read about your first topic, Mesopotamian and its geography. And then after we will read the urbanization and their important writing and legacy, tablets, कैसे कैसे विकास हुआ उनका, किन किन चीजों पे इस चैप्टर में पूरी डिटेल करेंगे। मेसोपोटामिया जैसा कि मैंने बताया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसस एंड पोटेमस। मेसस मीन्स रिवर, पोटेमस मीन्स मिडिल, मध्य का भाग। और ये इन चीजों को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका था। कंटेम्पररी हिस्ट्री इंडिया की काफी कुछ सिमिलरिटीज दिखती है मेसोपोटामिया से। ट्रेड हमारे होते थे सुमेर से, काब से, मेसोपोटामिया के शहरों से। और जब शहरों का उत्खनन हुआ उरूक, तो वहां पे इन सारी चीजों का मिलना, हमारी चीजें वहां मिली और उनकी द्वारा उपयोग की गई चीजें इंडिया में मिली, जिससे दोनों को कनेक्ट करने में इतिहासकारों को एक नया स्वरूप दिखा। एक नए तरीके के कल्चर को उन्होंने इंटरेक्ट होते हुए देखा। दोनों में समानता थी, दोनों में एकता थी, लेकिन इंडस कल्चर और मेसोपोटामियन कल्चर में कुछ आधारभूत असमानता भी दिखती है। खैर, आप इंडस के बारे में पढ़ चुके होंगे।
या अपने सीनियर क्लासों में, क्लास 12th में आप पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तब आप उन चैप्टर को और इस चैप्टर को ध्यान से टैली करिएगा। यू हैव टू कंपेयर बोथ, दोनों में क्या क्या समानता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीजों को आप देखिए। लेकिन पहले यू हैव टू फोकस दिस चैप्टर एंड देयर इंपॉर्टेंस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे फिर पढ़ेंगे आपका फर्स्ट टॉपिक मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।